بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آج ہم نرو انجری کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مطلب کس طرح نروس انجری ہوتے ہیں، اس کے ٹائپس کیا ہے. ٹھیک ہے، کیسے نرو انجری ہوتی ہے اور اس کے ٹائپس کیا ہے، پھر کس طرح وہ اس کی مطلب ریجنریشن ہوتی ہے اور اس کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. تو آج اس میں مطلب یہ ہمارا یہ لیکچر انکلوڈ ہے. تو نرو انجری کے بارے میں اس سے پہلے کہ نرو انجری کیا ہے تو نرو کے بارے میں بات. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ نرو ہوتے ایک نیوران. نیوران جو ہے ایک اسٹرکچر اینڈ فنکشن یونٹ ہے، ایک بیسک یونٹ ہے نرو سسٹم کا. ایک ہی سنگل سیل کو ہم نیوران کہتے ہیں. اور جب یہ نیورانس بنڈل آف نیورانس کو ہم جو ہے پھر نرو کہتے ہیں. یہ بنڈل آف نیوران یا کلیکشن آف نیورانس کو جو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم نرو کہتے ہیں. آؤٹ سائڈ دا سینٹرل نروس سسٹم سے باہر جو بنڈل آف نیوران ہوتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ان کو ہم نرو کہتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نرو جو ہوتے ہیں پھر اس میں 3 لیئرس ہوتے ہیں. ایک جو ہے ایپینیوریم جو آؤٹر موسٹ لیئر ہوتی ہے، یا پہلے جو اگر آپ اندر سے اسٹارٹ کریں ان سائڈ سے آؤٹ کی طرف جاتے ہیں تو جو ایگزام جو ایک ہی نیوران ہے اس کے ارد گرد جو آؤٹر موسٹ لیئر ہوتے ہیں اس کو ہم اینڈونیوریم کہتے ہیں. پھر یہ بنڈل آف نیورانس جب ہوتے ہیں اس کے ارد اس کو ہم بناتے ہیں، اس ایک بنڈل آف نیوران کو ہم ویسیکل کہتے ہیں. اور اس کے ارد گرد جو لیئر ہوتے ہیں، جو شیٹ ہوتی ہے، اس کو ہم پیرینیوریم کہتے ہیں. پھر اس طرح ویسیکلس کلیکٹ ہو جاتے ہیں. بنڈل آف ویسیکل جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے ایک شیٹ ہوتی ہے، اس کو ہم ایپینیوریم کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو بلڈ ویزل بھی ہوتی ہے، آرٹری اور وینز وغیرہ. اچھا، نرو انجری ہے کیا، کیسے، کیوں، مطلب نرو انجری کن کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ مطلب نرو کیسے انجر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا تو اسکیمی ہو جاتی ہے، مطلب کہ بلڈ سپلائی جو ہے وہ جو ہے کم ہو جاتی ہے یا اسٹاپ ہو جاتی ہے. تو جب بلڈ سپلائی اسٹاپ ہو جاتی ہے تو نرو کو بھی کچھ نیوٹرنس چاہیے. تو جب وہ نہیں ملتی تو ڈیفینیٹلی وہ پروسیس کی طرف جاتے ہیں اور اس کی انجری مطلب انجر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کمپریشن ہے، تو کمپریشن میں بھی اس کے علاوہ اسکیمے کے بعد جو ہے کمپریشن ہے. کئی اگر کمپریشن آ جاتی ہے، لیٹ سپوز یا ایک نرو اس کی مطلب کسی بھی وجہ سے یا فزیکل یا باڈی میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی ٹیومر ہو یا کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے نرو کمپریس ہو جاتا ہے، تو کمپریشن کی وجہ سے بھی نرو کی انجری ہوتی ہے. اس طرح ٹریکشن کی وجہ سے کہ آپ نرو کو ٹریکشن میں لے جاتی ہے، اس کو لینتر میں لے جاتی ہے، اس کے نارمل لینتھ سے اس کو ٹریکشن کی وجہ سے مطلب کھینچتے ہیں اس کو کہ چھاپ جو آتے ہیں ایسے دوست جاتے ہیں جس کی وجہ سے نرو ٹریکشن میں جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی نرو کی انجری ہوتی ہے. لیسریشن، کہیں انجری ہو، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کہیں جو بھی کہیں کوئی مسئلہ ہو یا بولٹ انجری ہو، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کوئی فریکچر وغیرہ ہوا، نرو اس کے ساتھ جو ہے کٹ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس سے بھی جو ہے نرو کی انجری ہوتی ہے. اس طرح برننگ کا کہیں کوئی برننگ وغیرہ ہو تو اس سے بھی نرو کی انجری. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ نرو کی جو انجری ہے وہ ویری کرتی ہے، مطلب اتنے مائنیوٹ یا ٹرانزینٹ سے لے کر تک بھی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ معمولی سی نرو انجری ہو جاتی ہے تو پھر وہ ریجنریشن ہو جاتی ہے، ریکور ہو جاتی ہے. یا نرو زیادہ اگر انجر ہو جاتے تو پھر وہ جو ہے ٹائم لیتے ہیں اس کی ریہیبلیٹیشن اور اس کی ریجنریشن جو ہے اس میں پھر ٹائم لگتا ہے. تو اچھا، یہ آپ ڈائیگرام دیکھ لیں. یہ دس از نارمل نرو. تو نرو میں آپ کو کیا کون کون سے اسٹرکچر نظر آئیں گے؟ سیل باڈی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایگزان جو ہے یہ یلو جو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے مائلین شیٹ ہوتا ہے اور جو ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک نارمل نرو ہے. پھر جو یہ اب یہ جو کمپریسڈ ہوا ہے، یہ نرو کمپریسڈ ہوا ہے. یہ اس کی جو ہے شیٹ لاس ہوا ہے، مائلین شیٹ جو ہے اس سے لاس ہوا ہے. یہ ایک قسم کی انجری ہے. اس میں کنیکشن ہوا ہے، ٹھیک ہے. ڈسکنیکشن مطلب ایگزام مطلب ڈسٹرب ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح یہ مکمل ڈی جنریٹ ہوا ہے یہ نرو، ٹھیک ہے. تو یہ ٹائپس آف نرو انجری ہے. پھر اچھا،
नर्व इंजरी एंड रिपेयर। तो नर्व, अच्छा नर्व की इंजरी तो होती है, एक नॉर्मल जो स्ट्राइटेड मसल होते हैं, जो स्केलेटल मसल, तो उसमें एक नॉर्मल एग्जाम होते हैं और टारगेटेड अर्गन को वो सप्लाई करते हैं। तो ठीक है, तो एक नॉर्मल नर्व इस तरह होते हैं कि एक नॉर्मल एग्जाम होगी, टारगेटेड अर्गन को सप्लाई करेगी और उस मसल मसल जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस नर्व को इंजर हो जाते हैं, नर्व की इंजरी होती है, नर्व फॉलोइंग नर्व इंजरी, डिस्टल पार्ट, तो इंजरी का जो डिस्टल पार्ट है, अब ये बात याद रखिए कि कहीं नर्व इंजर हुआ तो जो इंजरी से डिस्टल पार्ट होता है, इंजरी का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, तो जो डिस्टल पार्ट होते हैं वो डिसइंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, और इसका जो माइलिन शीट है वो जो है ब्रेकअप, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उससे जो है न्यू न्यू एक्सॉन टेंड्रिल्स, एक्सॉन जो होते हैं क्या डिवॉल्व करते हैं, टेंड्रिल्स, स्मॉल फाइबर्स डिवॉल्व, एक्सॉन जो प्रॉक्सिमल पार्ट वाला होता है, एक्सॉन जो इंटैक्ट होते हैं, एक डिस्टल वाला होता है, एक प्रॉक्सिमल। डिस्टल वाला तो डिसइंटीग्रेट करता है, इंजरी का जो डिस्टल पार्ट होता है वो तो खत्म हो जाता है। तो अब जो प्रॉक्सिमल वाला होते हैं वो टेंड्रिल्स प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल टेंड्रिल्स और फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, टू ग्रो इनटू अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग श्वान सेल, ये बनाते हैं। और इनमें से फिर जो ये वन ऑफ द टेंडल्स, ये विल फाइंड इट्स वे इनटू ओल्ड एंडोन्यूरल ट्यूब, जो एंडोन्यूरल ट्यूब है इसके तरफ जाते हैं और फिर क्या बनते हैं, एंड एग्जाम ले जाते हैं। अच्छा सिंपल बात, नर्व इंजरी हो जाते हैं, नर्व इंजरी का जो डिस्टल पार्ट है वो तो डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका जो जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द नर्व इंजरी है इसका एग्जाम जो है वो न्यू टेंड्रिल्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो टेंड्रिल्स को क्या बनाते हैं, ओल्ड जो एंडोन्यूरल ट्यूब है इसके तरफ जाते हैं, मतलब ठीक है, और एग्जाम इसी तरह फिर क्या करता है, स्लोली जो है रिजनरेशन इसकी। अच्छा ये तो था नर्व इंजरी और कैसे इसका रिपेयरिंग प्रोसेस है। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ नर्व इंजरी, ठीक है ना। हमने नर्व इंजरी पढ़ लिया कि कैसे नर्व इंजरी होती है, कंप्रेशन की वजह से, इस्कीमिया की वजह से, लेसरेशन की वजह से, ठीक है। तो नर्व इंजरीज की अब टाइप्स है कि तीन बड़े मेन टाइप्स है। एक है इसको हम कहते हैं न्यूरोप्रैक्सिया, एक्सोनोटोमोसिस एंड न्यूरोटोमोसिस। टाइप्स ऑफ नर्व इंजरी, तो तीन मेन टाइप्स हैं नर्व इंजरीज की। एक को हम कहते हैं न्यूरोप्रैक्सिया, एक को हम कहते हैं एक्सोनोटोमोसिस, एक को हम कहते हैं न्यूरोटोमोसिस, न्यूरोटोमोसिस। न्यूरोप्रैक्सिया में क्या होते हैं कि जस्ट कंप्रेशन होते हैं, नर्व पे कंप्रेशन आ जाता है, कंप्रेशन आ जाते हैं, तो अगर वो कंप्रेशन जब आप हटा दे, वो हट जाते हैं वो कंप्रेशन, तो दोबारा से वो रिवर्स मतलब रिकवर हो जाते हैं। जो लॉस है, जो सेंसरी या मोटर लॉस, अगर थोड़ा सा इसमें इतना ज्यादा सेंसरी लॉस होता है, मोटर लॉस इतनी ज्यादा नहीं होता, तो अगर वो कंप्रेशन आप हट जाता है तो वो दोबारा रिकवर करते हैं रिवर्स। फिर एक्सोनोटोमोसिस है, इसमें एक्सॉन जो है माइलिन शीट वगैरह ये सब ये जो है इंटैक्ट होते हैं, ये नॉर्मल ये ठीक होते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सॉन के वो कट जाते हैं, वो इसमें डिसइंटीग्रेशन इसकी हो जाती है। तो फिर ये भी एक सीवियर फॉर्म है, लेकिन अगर टाइम पे इसकी रीजनरेशन हो गई तो फिर भी जो है नर्व रिवर्स हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। अगर टाइम पे इसका जो है रिजर्वेशन नहीं हुआ तो फिर भी नर्व लॉस हो जाता है। इस तरह न्यूरोटोमोसिस इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म, ये सीवियर फॉर्म है कि इसमें नर्व के बिल्कुल मुकम्मल कट जाते हैं, तो इसकी दिट्स वेरी डिफिकल्ट, तो फिर इसके जो मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, मतलब रिकवर। तो फलते हैं न्यूरोपैथिया। तो ये एक सडन एक साइंटिस्ट है, उसने इस टर्म को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये कहते हैं कि न्यूरोप्लाज्म में जो होती है जो सेंसेशन होती है सम थोड़ी सी, देयर इज अ लॉस ऑफ सम टाइप्स सेंसेशन एंड मसल पावर, ठीक है। ये इतना ज्यादा सेंसरी लॉस और मोटर लॉस नहीं होता, लेकिन बहुत थोड़ा सा होता है।
اور आफ्टर फ्यू वीक्स जो है वो रिकवर कर लेता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये एक रिवर्सिबल फिजियोलॉजिकल नर्व कंडक्शन ब्लॉक है। तो अगर नर्व कंडक्शन ब्लॉकेज तो होती है लेकिन रिवर्सिबल है, विद इन फ्यू वीक या विद इन फ्यू डेज जो है वो रिकवर कर लेता है, ठीक है। और इसको उन्होंने कुछ चंद नाम दिए हुए हैं कि जैसे कि क्रच पॉलिसी या सैटरडे नाइट पॉलिसी। तो क्रच पॉलिसी का मतलब ये है कि जो पेशेंट्स या जो लोग क्रचेस यूज करते हैं तो वो अपने जो इसके जो मतलब आर्म पेट में जो है वो क्रचेस रखते हैं, तो इस पे कंप्रेशन आ जाती है, मतलब इसके नर्व्स पे या जो इसका ब्रेकिंग फ्लेक्सिस है इस पे प्रेशर आ जाते हैं, तो इसके वजह से फिर जो है इसकी अपर लेग में जो है हैंड्स में वो इस तरह मतलब इसकी सेंसरी और मोटर पावर जो है कम हो जाती है, इसको हम क्रच पॉलिसी कहते हैं। एक होती है सैटरडे नाइट पॉलिसी। तो सैटरडे नाइट पॉलिसी का मतलब ये है कि ये नाम इसलिए दिया गया है कि सैटरडे नाइट पॉलिसी कि वो लोग जो है सैटरडे को मतलब वो अ, छुट्टी हुआ करता था और उसमें जो लोग ड्रिंकिंग करते थे और फिर पूरी रात जो है वो मतलब बेहोश रहते थे उस ड्रिंकिंग की वजह से। वो मतलब एक पोजीशन पे वो अ, बैठे रहते थे या लेटे रहते थे जिसकी वजह से उसके नर्व्स पे उनके नर्व्स पे मतलब कंप्रेशन आ जाता था और इसकी वजह से थोड़ी सी फॉल्स हो जाती थी, तो इसको इसलिए इसको सेशन नाइट फॉल्स कहते हैं। तो न्यूरोपेनिया एक रिवर्सिबल फिजियोलॉजिकल नर्व कंडक्शन ब्लॉकेज है। इसमें एक्सॉन जो इंटैक्ट होते हैं, माइलिन शीट जो इंटैक्ट, थोड़ी सी कंप्रेशन आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अब अच्छा इस डायग्राम में आते हैं। इस डायग्राम से आपको पता चलेगा कि ये एक नर्व है, एग्जाम भी इंटैक्ट है, माइलिन शीट भी इंटैक्ट है, लेकिन थोड़ा सा कंप्रेशन आया हुआ है, इस नर्व को कंप्रेस किया हुआ है, इसको आप कहते हैं न्यूरोपेनिया। इसके बाद जो है एक्सोनोटोमोसिस है। तो ये सेवियर फॉर्म है एज कंपेयर टू क्या मतलब न्यूरोपेनिया, सेवियर फॉर्म अपना इंजरी है। और ज्यादातर जो है फ्रैक्चर और या डिसलोकेशन के बाद अगर कहीं किसी को फ्रैक्चर हो जाते हैं किसी इंजरी में, किसी एक्सीडेंट में, किसी भी वजह से या कहीं डिसलोकेशन हो जाती है, तो इसी वक्त जो है एक्सोनोटोमोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक्सोनोटोमोसिस का मतलब जो है ये है कि एक्सोनल इंटरप्शन, एक्सोनल डिसरप्शन, इसकी डिजेनरेशन लॉस हो जाती है, एक्सॉन जो इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये कहते हैं कि अच्छा वेलिरियन डिजेनरेशन एक प्रोसेस है। इसमें एक साइंटिस्ट थे वेलिरियन अगस्टस वेलर इसका नाम था, तो उसने ये डिस्क्राइब किया था। तो ये कहते हैं कि जब एक्सॉन जो है वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, या नर्व इंजर हो जाती है, तो इसका जो डिस्टल पार्ट जो है वो क्या करते हैं डिसइंटीग्रेशन इसकी हो जाती है, ठीक है। और प्रॉक्सिमल पार्ट से जो है वो एक्सटर्नल जो है टेंड्रिल्स डेवलप हो जाती है, फाइब्रोब्लास्ट आना शुरू हो जाती है, इस तरह श्वान सेल बनना शुरू हो जाती है और एंडोन्यूरल ट्यूब जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये एग्जाम इसकी रिजनरेशन हो जाती है। और अच्छा ये आप देख लेते हैं, दिस इज अ एक्सोनल एक्सोनोटोमोसिस। अब देखिए ये माइलिन शीट जो इंटैक्ट है, लेकिन अंदर से जो एक्सॉन है वो डिसइंटीग्रेट हुआ है, वो इंटरप्ट हुआ है, वो डिस्टर्ब हुआ है, मतलब वो खत्म है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्सोनोटोमोसिस। फिर एक्सटर्नल रीजनरेशन, अच्छा ये अब ये इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल रीजनरेशन जो होती है विद इन आवर्स, मतलब नर्व इंजरी हो गई, एक्सोनोटोमोसिस हो गया, तो विद इन आवर्स जो है आप नर्व डैमेज वही पे जो है जो न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स है वो आ जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो इसकी रिकवरी जो है उसकी रीजनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कहते हैं कि from proximal stumps they grow numerous fine unmyelinated tendrils। ये जो मैंने पहले भी बताया कि एक डिस्टल पार्ट ऑफ द नर्व इंजरी होती है, एक प्रॉक्सिमल पार्ट। जो डिस्टल पार्ट होते हैं वो तो डिसइंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एक्सोनल इंजरी है वो क्या करते हैं, वो टेंडल्स बनाती है, अनमाइलिनेटेड टेंडल्स बनना शुरू कर देती है और एंडोन्यूरल ट्यूब में जो है क्लॉट कर लेती है और इस तरह एक्सॉन की जो है
रीजनरेशन में, ठीक है। और कहते हैं कि तकरीबन पर डे जो है 1 मिलीमीटर जो है ये स्पीड के साथ जो है इसके रीजनरेशन प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये था एक्सोनोटमोसिस के बारे में। अब इसके बाद है न्यूरोटमोसिस। न्यूरोटमोसिस जो है सडन ओरिजिनल क्लासिफिकेशन के मुताबिक कि अगर किसी नर्व ट्रंक, नर्वोसिस मीन डिवीजन ऑफ नर्व ट्रंक, इसका मतलब क्या है? न्यूरोटमोसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ नर्व ट्रंक। तो आपका जो पूरा नर्व ट्रंक है वो डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, जबकि मैं अगर ओपन, और ये ज्यादातर जो है जो ओपन बोन होती है उससे फिर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये मोस्ट सिवियर फॉर्म, सिवियर डिग्री ऑफ डैमेज है जो कि डिवाइडिंग, जो नर्व को डिवाइड करते हैं, ठीक है, नर्व मुकम्मल पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं जो है, जो आपने पहले पढ़ा कि एक्सोनोट न्यूरोप्लास्टिसी में क्या था? सिर्फ जस्ट कंप्रेशन था। एक्सोनोटोमोसिस में क्या था कि माइलिन शीट भी इंटैक्ट था और सिर्फ एक्सॉन जो था वो इंटरप्ट हुआ था, इंटरप्ट हुआ था। लेकिन न्यूरोटोमोसिस में मुकम्मल तौर पर नर्व जो कट जाते, इसकी डिवीजन हो जाती, दो पीसेस में अलग हो जाते, ठीक है। तो कहते हैं अगर ये इंजरी इतनी ज्यादा सीवियर हो तो फिर इसकी रिकवरी नहीं हो सकती, ठीक है। एज एन एक्सोनोटोमोसिस देयर इज रेपिड, बट देयर इज, तो एक्सोनोटोमोसिस में रेपिड बिलियन डिजेनरेशन होती है, लेकिन न्यूरोटोमोसिस में इस तरह नहीं होता, ठीक है। और अगर ये नर्व की जो डिवीजन है, अगर ये सीवियर इंजरी हुआ हो तो फिर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, ताकि वो नर्व जो है रिकवर करे, ठीक है।